Okay, so we're starting a new topic. From class 9th we know a circle has like the basic things like a radius, the circumference, this circumference. This is basically the radius. These are the basic things everybody know. And if you just complete this becomes the diameter. So d is equal to 2r. We all know that. Now in 11th we have to focus on the equation of the circle. Basically, what is the equation of a circle in coordinate geometry? Let's just make a circle. If the circle has its center on some coordinate h and k, this be x-axis, y-axis, and then the radius r, then the equation of the circle would be x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. This basically equation of circle. Now if this h and k is 0 0, that means the circle is at origin here. Let's c1, this c2, this is c1, then c2 का equation would be x minus 0, that is x square, plus y square, same, k 0, equal to r square. This would be c2. So this is a circle with radius r on the origin, that is 0 0, and this is on hk. Now all the things you have learned in geometry applies here, just with the help of coordinates. Like we just use the coordinates to identify the points and lines and stuff, and all the things remain same, like the properties of the circle, like this, a diameter at any point, sorry, this here, at any point suspends a right angle. Okay, this is 90 degree. तो कोई भी डायमीटर होगा वो किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल सस्पेंड करता है. Next, there are other basic properties which you can revise from your class 9 textbook. Here we are going to go forward with what we have to study in this chapter. So the general equation we have studied here, this is going to always be used. There's another equation which is very important, and that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is another general form of the equation. Actually, if you just like in the expanded form, this becomes this, but we just use these symbols like g, f and c to identify some other things which I'm gonna like explain here. So what is the like center of this circle? If this is the equation given, मान लो ऐसा कोई equation दिया जाता है, उसका center कहाँ पे होगा? तो the center is identified as minus g and minus f. Okay, so this is 2g, this is 2f. So if we just take minus g and minus f, तो हमको पता चल जाएगा कि वो सेंटर है. What is the radius? यहाँ पे तो हमको पता था r स्क्वायर में r रेडियस है. यहाँ पे क्या है रेडियस? यहाँ पे रेडियस होता है r इक्वल टू रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. दिस इज द रेडियस फ्रॉम दिस इक्वेशन. लाइक इफ यू जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लाइक हमको अगर पहला टाइप का इक्वेशन दिया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25. तो यहाँ पे हमारा जो ओरिजिन होगा, मतलब सॉरी ओरिजिन मतलब उसका सेंटर जो होगा, ये सेंटर, वो क्या होगा? वो होगा 3 और 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे h है 3 और k है 1. ठीक है, 3 और 1. और रेडियस क्या होगा? दिस इज सेंटर, एंड रेडियस इक्वल टू ये देखो रूट 25. ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज 25, देन आर इज बेसिकली 5. ठीक है. दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ऐसा कुछ इक्वेशन है. ठीक है, सॉरी y प्लस c इक्वल 0. जैसे कि हम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज इक्वेशन. आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हमेशा सर्कल के इक्वेशन में दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस, ऐसे दिखने वाले जो इक्वेशंस होते हैं वो कॉनिक सेक्शंस में हर जगह आते हैं, क्योंकि मतलब हर टाइप के इक्वेशन में, हर एक
तुम्हारा जो भी शेप होता है, जैसे कि एक पैराबोला हो गया, या फिर एक इलिप्स हो गया, या फिर एक हाइपरबोला हो गया, ठीक है, इनमें सब में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा दिखता हुआ इक्वेशन मिल जाएगा। बस डिफरेंस क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। 1 हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है, पर हाँ सेम होना चाहिए। एक्स अगर एक्स स्क्वायर का 1 है तो इसका भी 1 होना चाहिए, इसका 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए, तभी ये सर्कल होगा। और दूसरी चीज़, इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आ रहा है, आप देख रहे हो एक्स वाई नहीं आ रहा है कहीं, हमेशा या तो एक्स है या तो वाई है, या तो एक्स स्क्वायर है या तो वाई स्क्वायर है, एक्स वाई कहीं नहीं आ रहा है। एक्स वाई आने पे वो लाइन का इक्वेशन बन जाता है, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है, इसमें से अगर हमको सेंटर निकालना है तो सेंटर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली ये दिख रहा है, ये 3 जो है, 3 जो है ये हमारा 2g है, 2g, ठीक है। और ये जो 2 है हमारा, 2 जो है ये 2f है। तो सेंटर क्या होता था, -g -f, तो हमारा g यहाँ से 3/2 है तो -3/2 हो जाएगा ये। और f क्या है, f मतलब जो y वाला था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 -1, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारे पास ये दिस स्क्वायर, देखो यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो व्हाट इज जी, 3 3 9 प्लस 4 एंड देन माइनस सी, दिस इज माइनस सी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, माइनस सी, दिस इज सी, तो -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास √12, ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। तो ऐसे करके हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। Let's just start with another aspect, very important one, the tangent of a circle. तो आपको tangent पता होगा अभी तक कि क्या होता है। अगर आप देखोगे, आप कैलकुलस में पढ़े होगे कि ये किसी भी पॉइंट पे जब हम tangent ड्रॉ करते हैं, tangent मतलब कि वो शेप से, मतलब उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्री। नाउ दिस इज द कर्व, जो कि हमारा सर्कल है, उसका एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो उसकी टेंजेंट होगी। अगर हमको ये पॉइंट दिया है, मान लो x1 और y1, ठीक है, x1 y1 पे अगर हमको टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट लाइन, पहली चीज़ आप कर सकते हो कि हमारे पास इक्वेशन होता है, मान लो ये अगर कोई भी इक्वेशन है, ये मान लेते हैं हम 0 0 पे, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इक्वेशन। हम इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स हो जाएगा m मतलब स्लोप, और dy बाई डी एक्स जो होगा अगर स्लोप होगा तो उससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट पे। कैसे लिखेंगे, बेसिकली अगर हमको स्लोप मिल गया तो हम स्लोप और पॉइंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m, ठीक है। ये हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे। आप लोग पढ़े होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि अगर किसी पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप दिया गया है, स्लोप मतलब उसका इंक्लाइन दिया गया है, तो उसका इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दिस कैन बी। उसके अलावा लाइक वैसे तो हम यही यूज़ करेंगे, पर हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें से हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन, मतलब जितने भी कॉनिक सेक्शंस होते हैं, उनमें हम टेंजेंट निकालने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, शॉर्टकट है, उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, जिससे हमको इक्वेशन मिल जाएगा टेंजेंट का। उसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो हम बेसिकली उसको बोलते हैं t इक्वल टू 0 कर दो। t इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होता है, हम हमेशा x स्क्वायर है कहीं पे अगर, तो उसको हम लिखेंगे x x1, अगर 2x है कहीं पर तो उसको लिखेंगे हम x प्लस x1, और सिमिलरली y के लिए भी y स्क्वायर है अगर तो हम y y1 लिखेंगे, और 2y है कहीं पे तो y प्लस y1 लिखेंगे। तो मतलब बेसिकली y को लिखना है तो y बाई y1 बाई 2 और यहाँ पे अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम यूज़ करके डायरेक्ट किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स x1 के साथ। x1 क्या है, x1 वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट निकालना है, ठीक है, तो x x1 प्लस यहाँ पे y y1, और बाकी सेम लिख दो। बस इक्वेशन में क्या करना है आपको, x और y को रिप्लेस करना है अपने कॉरिस्पॉन्डिंग दीज जो सब्सटीट्यूशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 लिखना है, x को x प्लस x1 बाई 2 लिखना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा हो जाता है टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर ये 0 0 से पास हो रहा है तो ये इक्वेशन होगा, और इस इक्वेशन का टेंजेंट इस पॉइंट पे x x1 y1 पे ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है,
तो पहली चीज़ हमको पूछेगा कि किसी भी पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट कितना होना चाहिए, चलो हम देखते हैं कोई सेटिस्फाई करेगा। अगर हम देखें यहाँ पे 3 और 4 सेटिस्फाई करेगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25। तो यहाँ पे मान लो 3 और 4 एक पॉइंट है सर्कल पे जो कि होगा। अगर हमको बताना है कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगी उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 प्लस y1 इक्वल टू 25 करेंगे। x1 और y1 क्या है, 3 एंड 4 है, तो हम बेसिकली यहाँ पे 3 और 4 डाल देंगे, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास, आप देख रहे हो ये तो क्या आपके पास डायरेक्ट तरीका, एक और तरीका है अगर आपको जानना है फॉर योर नॉलेज, वो हो जाएगा हमारे पास। ये जो है, ये जो लाइन देख रहे हो 0 0 2 3 4, इसका जो स्लोप होगा ये एक्चुअली में देखोगे तो आप परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हम इसका स्लोप और ये पॉइंट हमारे पास है उससे हम निकाल सकते हैं। तो हमको बस स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकलेगा कि ये जो लाइन है, दिस रेडियस वाली लाइन, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं विच वुड बी, मान लो m डैश, ठीक है। m डैश हो जाएगा क्या, 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 विच वुड बी 4/3, ठीक है। और अगर m डैश आ गया तो हमारे पास m कितना आ जाएगा, m देखो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और हमको पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। उनका स्लोप का मल्टीप्लाई करने पे हमको -1 आता है। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ से हमको m निकालना हुआ जो कि इसका है, तो ये हो जाएगा -1/m डैश इक्वल टू -3/4 होना चाहिए। बस अब हम ये स्लोप ले लेंगे और ये पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 जो कि 4 हो जाएगा, x माइनस x1 जो कि 3 हो जाएगा, इक्वल टू -3/4। और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम इक्वेशन यही आएगा, आप देखोगे इक्वेशन यही आएगा। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल है और ये तुम्हारा उसको शॉर्टकट लगा के करा है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 लगाया है, ठीक है। t इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि सब्सटीट्यूट करो विद द स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस दीज। और ये सिर्फ सर्कल में काम नहीं आएगा, ये और भी जगहों पे काम आएगा, जैसे कि पैराबोला हो गया, आपका इलिप्स वगैरह आएगा जो उनमें भी काम देगा। Let's just finish this topic after explaining how to find the equation of the normal.